Hello friends, now we will discuss about our new chapter with a quick revision that is known as the solutions. So we will discuss about a numerical formulas of your chapter solution. Let's we discuss about the some three basic formulas. ये फॉर्मूला जब तक आप केमिस्ट्री को रीड करेंगे तब तक आपको याद रखने होंगे. सबसे पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. जब मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है. सेकंड वन इज द कैलकुलेशन बाय गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर दैट इज फाउंड इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स. थर्ड फॉर्मूला जिसमें अगर आपको गिवन एटम से गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हों तब उस फॉर्मूले के अंदर गिवन एटम गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रो नंबर दैट इज कॉल्ड द 6.02223 10^23 से डिवाइड करते हैं तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. सो दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ आवर केमिस्ट्री. मास फ्रैक्शन, दिस इज द मास fraction. So what is the meaning of mass fraction? Mass fraction means given mass of one substance divided by total mass of given substance. मान लीजिए आपको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो सोल्यूट दिए गए हैं और आपको एक का मास फ्रैक्शन निकालना है तो आप क्या करेंगे? मास फ्रैक्शन इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m1 plus m2. टोटल मास को सेम एज द मास फ्रैक्शन वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम फ्रैक्शन दैट इज नोन एज द वॉल्यूम फ्रैक्शन. So what is the volume fraction? Same as the mass fraction. Volume fraction is equal to volume of one solute divided by total volume of solute. मान लीजिए आपको दो तीन सोल्यूट दिए गए हैं, दो सोल्यूट दिए गए हैं किसी सॉल्यूशन में तो एक का वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ वन सोल्यूट divided by total volume same as the volume fraction also can calculated for second V2 divided by V1 plus V2. So this is the volume fraction of second. Same as we can calculate mole fraction if you have given different type of the solutes. Suppose you have given A, B, C solute and you want to calculate mole fraction which is represented by X. So first of all you will calculate the moles. For A number of moles is A, for B number of moles B, for C number of moles C. मैंने पीछे बताया है आपको कि मोल कैसे निकालते हैं. These may be calculated by mass, these may be calculated by volume and these may be calculated by given number of atoms. तो सबसे पहले हमारा यही टारगेट होगा कि हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं. उसके बाद इन मोल का फ्रैक्शन निकालेंगे. सपोज आई एम राइटिंग इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए देन Na डिवाइडेड बाय Na Nb plus Nc. Same as if you want to calculate for C then it will be Nc divided by Na plus Nb plus Nc. This is the mole fraction of C component and always remember total mole fraction, this is the total that is equal to 1. For example if you calculate total then it will be equal to Xa plus Xb plus Xc and that will be equal to 1. What is meaning of strength? Strength also represents the number of moles. So what is the strength? It represents number of moles in given volume and volume always represented in liter. If suppose you have given volume in ml then you can convert into liter by multiplying is 1000. Similarly we also will calculate on the basis of strength. There are two important formulas that is known as the molarity. This is molarity. Molarity represented by capital M. And what is the meaning of molarity? Molarity means number of moles in given volume and volume represented in the liter. So molarity is number of moles of the solute. Number of moles of the solute divided by volume of solution. Whose volume? It is the volume of solution. So this is the important concept of solution to calculate molarity. Second one, next, molality. मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों सुनने में एक ही तरह के अपीयर होते हैं पर दोनों के बीच डिफरेंस है. मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला मोलैलिटी? इट्स फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन गिवन मास ऑफ solvent. So this is the different that in case of molarity that is present in the given solution but molality is the number of moles of solute present
in given mass of solvent. So always remember how you will calculate the mass of solvent. So total mass of solution, mass of solution, that is equal to mass of solute plus mass of solvent. So now you also can calculate mass of the solvent. Normality. What is normality? It is represented as n equal to gram equivalent mass of solute divided by solution and solution volume always represented in the liter. Always remember solution कोई भी concept हो हमेशा लीटर में ही रिप्रेजेंट करते हैं. So normality is gram equivalent mass of solute in given solution. अब प्रॉब्लम यहां है कि ये ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है. ग्राम इक्विवेलेंट मास. सो ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. सो नाउ अब हमने ग्राम इक्विवेलेंट मास को इस टर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास बाय इक्विवेलेंट मास. दिस इज ऑफ सोल्यूट. अब समस्या यहां है, प्रॉब्लम यहां है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट मास. अब केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज यूज होते हैं, अलग अलग तरह के कंपाउंड यूज होते हैं, दैट इज एसिड, बेस, साल्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट. तो सबके लिए इक्विवेलेंट मास अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड. सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड? मोलर मास डिवाइडेड बाय number of H positive ions. Same as to calculate equivalent mass of the base. So what will be for base? That is the molar mass divided by OH negative ions. Same as for salt. You also can calculate equivalent mass of salt. So what is the equivalent mass? That is the molar mass. और अगर आपको molar mass पता है या फिर इसकी जगह पे आप फॉर्मल मास का भी यूज कर सकते हैं. फॉर्मल मास, दैट इज आल्सो फॉर्मल मास, क्योंकि साल्ट के लिए फॉर्मूला है, एक आयन है, तो हम उसके लिए फॉर्मल मास का यूज करते हैं. तो डिवाइडेड बाय चार्ज, आइदर द कैटायन और आइदर द एनायन. जनरली वी टेक द चार्ज ऑन द कैटायन. सो नाउ द साल्ट, द मोलर इक्विवेलेंट मास फॉर द साल्ट इज मोलर मास और फॉर्मल मास डिवाइडेड बाय चार्ज एंड चार्ज ऑन द cation. Same as element. If you have given element, then how you will calculate the equivalent mass for the element? Element के लिए equivalent mass calculate करना है तो its atomic mass, because atom है element, atomic mass, it may be also molecule, atomic mass divided by valency. And what is the valency? Valency means combining capacity of atom. For example, oxygen have 2 valency and nitrogen have 3 valency. Same as general formula for the molarity equations, and same as normality equation. So now what are the normality and molarity equation? Molarity equation, मान लीजिए आपके पास कोई लेबोरेटरी के अंदर कोई सॉल्यूशन है, आप उस सॉल्यूशन को दूसरी कंसेंट्रेशन में बदलना चाहते हैं. आपको दिया है M1V1, आप इसे दूसरी कंसेंट्रेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन इट विल बी इक्वल टू M2V2. सो M1V1 इज इक्वल टू M2V2. सेम एज गिवन नॉर्मेलिटी इज N1V1, you want to convert in other normality, then it will equal to N2V2. आप इस नॉर्मेलिटी को, इस मोलैरिटी को दूसरी कंसेंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेम एज if you want to mix the solutions of different normality, then what happens? M1V1 plus M2V2, what will be equal? That will be equal to the M3 and total volume V1 plus V2. अगर आपको दो अलग अलग नॉर्मेलिटीज के सॉल्यूशंस दिए जाएं, हमें उनकी नॉर्मेलिटीज पता है, और जब आप उनको मिक्स करते हैं तो उनकी जो नॉर्मेलिटी बनेगी, उनको मिक्स करने के बाद तो नए सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट होगी. दैट विल बी M3 एंड वॉल्यूम विल बी V1 प्लस V2. सेम एज इन केस ऑफ नॉर्मेलिटी N1V1 एंड सेकंड सॉल्यूशन N2V2. इफ यू मिक्स देन इट विल बी इक्वल टू N3 एंड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द V1 प्लस V2. सेम एज
अगर आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों के बीच एक रिलेशन कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द रिलेशन N and M, then what will be relation? N is equal to M multiply acidity, and same as N is equal to M molarity multiply basicity. So what is the meaning of acidity and basicity? अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है किसी एसिड के लिए, हुज फॉर एसिड एंड दिस इज फॉर द बेस, you also can represent A, this is for the B. So acid के लिए represent करेंगे तो that will be equal to molarity multiply acidity, और किसी base के लिए calculate करेंगे that will be equal to molarity multiply basicity. Base के लिए basicity और acid के लिए, so what is the meaning of acidity? Acidity represent affinity to OH negative ions. And what is the meaning of बेसिसिटी? बेसिसिटी का मतलब रिप्रेजेंट करता है एफिनिटी टू H पॉजिटिव आयन. कितने H पॉजिटिव के आयन की तरफ एफिनिटी है, कितने H पॉजिटिव के लिए एफिनिटी है, दैट इज कॉल्ड द बेसिसिटी. सिंपल लैंग्वेज में आप ये मान के चल सकते हैं कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर है तो वह एसिडिटी कहलाता है, और OH नेगेटिव आयन जितने हैं that represent the acidity. So ppm represent the amount of solute. This is the amount of solute in the 1 million part of solution. Solution के 10 लाखवें भाग में, हिस्से में, पार्ट में कितना सोल्यूट है, that is known as the ppm. सॉल्यूशन कितना लेंगे, सॉल्यूशन का कौन सा पार्ट, 10 लाखवां, 10 मीन्स 1 million 10 power 6. So it will be equal to the solute divided by solution multiply 10 power 6. This is known as the ppm, and this is used to find out the concentration of very dilute or very minute gases or poisonous gases present in our environment. Now formula on basis of Henry law. Formula on basis of Henry law. Henry law से mass of gases dissolved in a given solvent in a given solution is directly proportional to pressure. कि जितना प्रेशर किसी गैस के ऊपर अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा उसका अमाउंट कंसंट्रेशन डिजोल्व होगा किसी सॉल्वेंट के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर. देन M is equal to Kp. What is K? K is the constant, proportionality constant, and its value depend upon the temperature, pressure and nature of solvent and nature of solution. Now हेनरी लॉ को अगर मोल फ्रैक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, मोल फ्रैक्शन मींस मान लीजिए एक गैस नहीं 2 3 4 गैस डिसॉल्व करते हैं किसी गिवन सॉल्वेंट, किसी गिवन सॉल्यूशन के अंदर, तब हम मास का यूज नहीं करते, तब हम मास को मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तब हेनरी लॉ क्या होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन. Mole fraction of A, you also can say B, you also can take of the C. So mole fraction of gas dissolved in a given liquid is directly proportional to partial pressure of gas. Partial pressure कितना exert करती है गैस, that is equal to partial pressure. तो मोल फ्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज हैं. अगर एक गैस के लिए कोई प्रेशर मेजर करते हैं दैट विल बी प्रेशर, पर अलग अलग टाइप की गैसों के लिए पार्शियल प्रेशर का यूज करते हैं. एंड XA इज इक्वल टू K डैश PA. K डैश इज आल्सो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. इसकी वैल्यू भी किस पे डिपेंड करती है, वैल्यू डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. सेम एज K डैश इज आल्सो इनवर्स ऑफ द KH, एंड दिस इज द Henry, this is Henry constant. So always remember KH is the Henry constant, और K dash और KH दोनों इनवर्स होते हैं. अगर इसकी वैल्यू पुट की जाए तो that is XA is equal to K dash PA, that will be equal to XA 1 by KH, that is PA. So PA will be equal to the XA KH. So this is known as the Henry law. And these are the two formulas, this formula and this. In this representation of KH,
and there is the representation of K dash. So this is the on basis of Henry law. Next is formula on basis of Raoult law. What is the Raoult law? Raoult law ये बोलता है कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई गैस प्रेजेंट है या गैसेज प्रेजेंट है और हम उसको हीट करते हैं तो गैसेज प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, और अगर उस सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो दैट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट विल नॉट एक्सर्ट प्रेशर. सो हु विल एक्सर्ट वेपर प्रेशर? ओनली वोलेटाइल सब्सटेंस. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. ऑलवेज रिमेंबर कि किसी सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड सेकंड इज द वोलेटाइल कंपोनेंट. दिस इज वोलेटाइल, तो ये वोलेटाइल का वेपर प्रेशर है. दिस इज द वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर प्रेशर. और दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज नॉन वोलेटाइल, उस कंपोनेंट का क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मोल फ्रैक्शन. अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर बी कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करता है तो बी का मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू नो XA प्लस XB दैट इज इक्वल टू 1. टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है, तो XB will be equal to 1 minus XA. So this value we will put in this equation. Then what will happen? P solution will be equal to P naught into 1 minus XA. This will be vapor pressure for the B component and this is the vapor pressure of A component. Next one, let's we compare the solubility at different pressure. P1 and P2 pressure are different but T is same. Then what happens? मान लीजिए किसी गैस को किसी सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करते हैं और अलग अलग प्रेशर पे डिजोल्व करते हैं बट टेम्परेचर इज सेम. देन व्हाट विल हैपन? M1 मास डिजोल्व इज इक्वल टू K P1. दिस इज अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, क्योंकि अगर किसी भी मास को किसी सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करते हैं दैट इज डिपेंडेड ऑन द प्रेशर, क्योंकि प्रेशर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो हम हेनरी लॉ को अप्लाई करेंगे सेम एज M2 मास विल डिजोल्व एट द प्रेशर P2, क्योंकि यहां पर प्रेशर की अलग अलग वैल्यूज हैं तो सोल्यूबिलिटी भी सिंपल सी बात है दोनों की अलग अलग होगी. बट ऑलवेज रिमेंबर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इसीलिए जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट विल बी सेम, दोनों के अंदर उनकी वैल्यू सेम होगी. तो कंपेयर कैसे करते हैं? M1 डिवाइडेड बाय M2 एंड सेकंड इज P1 डिवाइडेड बाय P2. दिस इज द कंपैरिजन of mass soluble in given Van Hoff equation. Or this is also known as the Clausius equation. Clausius equation और Van Hoff equation अलग अलग प्रेशर के ऊपर अलग अलग लिक्विड का और गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है. सिंपल वर्ड में ये बोल सकते हैं कि अलग अलग प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट हमेशा अलग अलग होता है. प्रेशर P1, इफ यू टेक प्रेशर P1 P2 एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी T1 T2. अब अलग अलग प्रेशर पर P1 एंड P2 पर बॉइलिंग पॉइंट T1 और T2 कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज इक्वल टू log इक्वेशन इज log P2 बाय P1 इक्वल टू डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन. व्हाई वी यूज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन? क्योंकि जब किसी लिक्विड को हीट करते हैं दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और जब किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं दैट इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. सो व्हाट हैपेंस? डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय 2.303 R into T2 minus T1 divided by T1 T2. So this is the expression for Van Hoff or Clausius equation. Log P2 P1 is equal to delta H of vaporization divided by 2.303 R, and R is known as a gas constant 8.3 joule per Kelvin per mole. So always remember कि P2 और P1 प्रेशर के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट
T2 और T1 मींस वेरिएशन होगा, चेंज होगा, कितना होगा दैट डिपेंड अपॉन द experimental values. Let's discuss next important formulas that are based upon the colligative property. This is the colligative properties. So this is the most important property that is known as the colligative property. So you know there are 4 colligative properties. How many colligative properties? There are the 4 colligative properties. You know the first one is lowering in vapor pressure. Second one is elevation in boiling point. Third one is depression in freezing point. And fourth, what is the fourth? Osmotic pressure. So now we will discuss about the formulas used in given colligative properties. So first one is the lowering in vapor pressure. Lowering in vapor pressure. So what formula used on behalf of lowering in vapor pressure? The formula is P naught minus PS divided by P naught, that is equal to X. X represent the mole fraction of component N1 divided by N1 plus N2 if you compare with respect to 1. So P naught is lowering in vapor pressure, that is of the solvent. Dot हमेशा solvent को represent करता है, star you also may be represented by dot or you also may represent by star, and S represent solution और P नोट माइनस PS रिप्रेजेंट ये करता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन की कंपेयर में ज्यादा होता है, हाइयर होता है. अगर आप इसको सेकंड सॉल्यूट से कंपेयर करते हैं दैट विल बी इक्वल टू P नॉट PS डिवाइडेड बाय P नॉट इक्वल टू N2 N1 प्लस N2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B. दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A. So always remember this is the compared to the mole fraction. Same as next important property, elevation in boiling point. Elevation in boiling point. So what is the elevation in boiling point? जब किसी solvent के अंदर solute ऐड करते हैं, कौन सा solute? नॉन वोलेटाइल solute, तो solution का boiling point हमेशा बढ़ जाता है. तो इसको express कैसे करेंगे? This is expressed as delta TB. This is the increased boiling point, that is equal to M KB. So what is M? M represent the molality. हमेशा molality. M is molality. Why not molarity? क्योंकि हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं, बॉइल करते हैं, तब कौन सी वैल्यू वेरिएशन नहीं होनी चाहिए? क्या वेरिएशन नहीं होना चाहिए? मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स शुड नॉट बी चेंज. क्या वैल्यू वेरिएशन नहीं होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स. अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए, बढ़ गए, डिक्रीज हुए, तो सारा कंसेप्ट ही बदल जाएगा. तो इसीलिए हम मोलैलिटी प्रीफर करते हैं, क्योंकि हीट के साथ मोलैलिटी कभी चेंज नहीं होती. सो व्हाट इज केबी? सो केबी इज ल्यूबोस्कोपिक कांस्टेंट. दिस इज नोन एज अ ल्यूबोस्कोपिक कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू mr T square divided by 1000 multiply delta H of vaporization. This is known as enthalpy of vaporization. अभी आपने डिस्कस किया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया है तो समझ लीजिए, यू नो व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. दिस इज रिप्रेजेंटेड डेल्टा TF. दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो व्हाट इज वैल्यू? Delta TF is equal to M multiply KF. This is the KF. KF is cryoscopic constant. Same M molality and delta TF. This is the depression in freezing point. सिंपल सा फंडा ये है कि अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो क्या होता है? सॉल्यूशन बनता है. तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ेगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा. फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज डिक्रीज. सो सेम एज KF is cryoscopic constant. Its value is mr T square divided by 1000 multiply delta H of fusion. क्योंकि पिछले कंसेप्ट में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या यूज किया था? डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन. क्योंकि वहां पर हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं, तो हीट के लिए कौन सी एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है?
एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, पर यहाँ पर फ्रीजिंग का काम है, तो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. सो दिस इज द depression in freezing point and that was the elevation in boiling point. Next one is Van 't Hoff factor. So what is the meaning of Van 't Hoff factor? Van 't Hoff factor represented by I. So first of all, it is represented by I. So always remember Van 't Hoff factor calculated on the behalf of molecular mass or calculated on the behalf of colligative property. तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि Van 't Hoff फैक्टर को निकालते कैसे. इट इज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास. अगर हम कैलकुलेटेड मोलर मास दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल मोलर मास, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल. जनरली हम किसी रिएक्शन के अंदर इसको 1 कंसीडर करके ही चलते हैं, और मोलर ऑब्जर्व्ड मोलर मास दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मोलर मास. So calculated by observed that will equal to I, Van 't Hoff factor. And next one is the on relation to the colligative property. This is reverse of molar mass. Observed colligative property divided by normal colligative property, or you can say as calculated colligative property. दोनों का ही रिलेशन एक दूसरे के इनवर्स होता है. अगर हम इनको इक्वल पुट करते हैं then I will be equal to calculated molar mass divided by observed molar mass. This will be equal to observed colligative property and divided by calculated colligative properties. और हमेशा याद रखिए जो I की वैल्यू है वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन के कारण बदलती है. अगर I की वैल्यू 1 से ग्रेटर है दैट इज द डिसोसिएशन, देयर इज द डिसोसिएशन. और अगर I की वैल्यू लेस देन 1 मिलती है एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस के अंदर, अगर वैल्यू I लेस देन 1 पाई जाती है तो दैट इज इक्वल टू द एसोसिएशन. और अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों 1 है, दोनों की वैल्यू 1 आती है, तो दैट मींस नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन, देयर इज नो डिसोसिएशन. तो ना एसोसिएशन होता है और ना ही डिसोसिएशन होता है. सो ऑलवेज रिमेंबर I इज इक्वल टू MC by MO, calculated molar mass divided by observed molar mass, and that is equal to observed colligative property divided by calculated colligative property. Next one is on the behalf of Van 't Hoff factor, we will discuss about different type of properties: elevation in boiling point, depression in freezing point, lowering in vapor pressure, and fourth one is osmotic pressure. So first one is elevation in boiling point. What is the value of elevation in boiling point? That is equal to T delta TB KB multiply M. But if you compare with the Van 't Hoff factor, then value will be equal to the I KB M. तो हमेशा याद रखिए जब भी किसी रिएक्शन के अंदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात है तब हम Van 't Hoff factor को अप्लाई करेंगे. That will equal to I KB M. Same as in case of depression in freezing point, the value will be delta TF is equal to KF M. So it will change to I KF M. तो हमेशा याद रखिए डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में हमेशा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज को Van 't Hoff फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. थर्ड वन इज लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर. तो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी P0 minus PS divided by P0, that is the X. अब यहां पर Van 't Hoff फैक्टर को कैसे अप्लाई करेंगे? This will be equal to P0 minus PS divided by P multiply IX. X is the mole fraction of given component and P is the P0 is the vapor pressure of pure component and PS is the vapor pressure of solution. And fourth one is the osmotic pressure. You know osmotic pressure is equal to pi CRT. So how you will apply the Van 't Hoff factor? You will apply pi is equal to I CRT. I is the Van 't Hoff factor and C is the concentration. So this is the relation between different values of colligative properties with I. The next formula is degree of dissociation and here degree of association. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है? नाम से ही है, जैसे
degree of dissociation, number of molecule dissociated divided by total number of molecules। तो दिए गए नंबर में कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं उनका रेशो डिसोसिएटेड बाय टोटल, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और यहां पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड divided by total number of molecules, this is known as a degree of association। next one is dissociation constant। so what is the dissociation constant? ये वैल्यूज तभी निकाली जाती है जब कोई मॉलिक्यूल, जब कोई एसिड या बेस डिसोशिएट होता है, उसके लिए हम कोई इक्वेशन कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल यू टेक फॉर एसिड, इट डिसोशिएट इनटू A पॉजिटिव एंड H नेगेटिव। मान लीजिए जब कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, नो रिएक्शन, तब क्या था, तब वैल्यू इसकी कितनी थी, दैट वाज द C, इट्स वैल्यू वाज C एंड वैल्यू ऑफ दिस वाज 0 एंड वैल्यू ऑफ दिस वाज 0। पर जैसे ही डिसोसिएशन हुआ, तो क्या हुआ, इसका कुछ अमाउंट किस में कन्वर्ट हुआ, A पॉजिटिव में, और किस में कन्वर्ट हुआ, H नेगेटिव में। तो कितना कन्वर्ट हुआ, C, दिस इज आल्सो C, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में डिसोसिएट होंगे, फॉर्मेशन होगी उनकी, तो दोनों की वैल्यू C। और इनका कोई डिसोसिएशन या फॉर्मेशन का कुछ रेट भी है, दैट इज द अल्फा, इट्स रेट इज अल्फा एंड इट्स रेट इज अल्फा, दिस इज द फॉर्मेशन रेट, और यू कैन से डिग्री रेट। सेम एज जब C अल्फा की फॉर्मेशन हुई तो वो वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी, कम हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू C माइनस C अल्फा, क्योंकि इसमें से जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो इसमें से हमें माइनस शो करना पड़ेगा, तो C माइनस C अल्फा, और जो फॉर्मेशन हुआ दैट इज द C अल्फा एंड दैट इज द C अल्फा। अब हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑफ Ka, दिस इज फॉर एसिड। इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर बेस दैट विल बी Kb। So Ka is equal to product by reactant and this is equal to C alpha multiplies C alpha divided by C minus C alpha। So what will be value, C square alpha square C into 1 minus alpha। So C to C cancel, so C alpha square divided by 1 minus alpha। So you can say dissociation constant is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha। So this is the value of dissociation constant and degree of dissociation। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।